بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے پچھلے ہفتوں میں اس درس کا سلسلہ موقوف رہا۔ اب عید الفطر، عید الاضحیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے دوبارہ اس درس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور آج یہ عید الاضحیٰ کے بعد کا پہلا درس ہے جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ جس مسئلے پر گفتگو عید سے پہلے کر رہے تھے، سلف صالحین کے یہاں جو دعوت کے اصول ہیں، سلفی دعوت کے اصول، اس ضمن میں ہمارے سامنے دوسرا موضوع ہے، وہ ہے بدعت اور بدعت کی مذمت اور اس کی برائی۔ قرآن کریم کی آیات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث اور اسی طرح سے سلف صالحین کے اقوال فرمودات کی روشنی میں شریعت میں بدعت مذموم ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے آپ نے پڑھا ہے۔ آج اسی سلسلے کی مزید ایک دو باتیں یا اس سلسلے کے ایک دو مسائل مزید ہمیں پڑھنا ہے۔ پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی بدعت کے کام میں پڑ جائے، تو ایک بدعت ہے، دو بدعت ہے، اکا دکا بدعت میں اگر کوئی مسلمان پڑ جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ آدمی بدعتی ہو جائے، کیونکہ بدعتی کہنا الگ چیز ہے اور کسی سے بدعت ہو جانا ایک الگ چیز ہے۔ کسی شخص کا بدعت میں پڑ جانا، بدعت کے کام میں مبتلا ہو جانا، بدعت میں واقع ہو جانا، بدعت کا کام کر بیٹھنا، یہ الگ چیز ہے، اور کسی شخص کا بدعتی ہونا ایک الگ چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص نے اگر کبھی ایک دو مسئلے میں کبھی بدعت کا کوئی کام کیا، اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ ابھی جو بدعت کی بات چل رہی ہے، اس بدعت سے مراد، اس کا مقصود وہ بدعت ہے جس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، یعنی ابھی جو بات چل رہی ہے بدعت سے متعلق، وہ عملی مسائل میں بدعت سے متعلق ہے۔ عملی مسائل میں جس کا تعلق عمل سے ہے، جس کا تعلق سلوک سے ہے، ایکشن سے ہے، رویے سے ہے۔ عقیدے سے متعلق جو بدعتیں ہیں ابھی اس پر بات نہیں ہو رہی ہے، اس پر بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے تفصیل سے آئے گی۔ اس لیے ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ عملی بدعت، عملی بدعت کی مثالیں وغیرہ اس سے پہلے سرسری طور پر ہم نے آپ نے پڑھا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو مسجد میں اور اقامت ہونے والی ہو، تو وہ شخص زبان سے نیت کرے، اور زبان سے نیت کرتے ہوئے کہے میں نیت کرتا ہوں اتنی رکعت فلاں نماز کے لیے، اور میرا چہرہ قبلہ رو ہے، یعنی میں قبلہ رو ہوں، فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی زبان سے نیت کرے، ایک عمل کی بدعت ہے۔ یا ایسی مثال کے طور پر کوئی شخص اذان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ درود پڑھنا غلط نہیں ہے، درود پڑھنا تو نیکی کا کام ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں کم سے کم نازل فرماتا ہے۔ لیکن اذان سے پہلے درود پڑھنا یہ ایک بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد ہمیں درود کا حکم دیا ہے، اذان ختم ہو جائے، اذان کے ساتھ ساتھ مؤذن کے ساتھ ساتھ اذان کا جواب دیا جائے، اور اذان ختم ہو جائے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھو، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا
जो दुआ अजान के बाद सिखाई गई है वो दुआ पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान के बाद तो सिखाई है ये दुआ, और दरूद पढ़ने का भी आपने हुक्म दिया है, आपने तालीम दी है, तलकीन की है। लेकिन अजान से पहले कोई भी अजान हो, किसी भी नमाज की अजान हो, अजान से पहले ज़ाहिर है कि दरूद का सिर्फ तरीका अल्लाह के नबी ने नहीं सिखाया। अब कोई आदमी अगर ये काम करता है तो ये अमली बिदअत, ये बतौर मिसाल है। तो अमल से बिदअत जो मुताल्लिक है उसी की बात अभी हमारे सामने, हमारे और आपके बीच में चल रही है। तो बात क्या हो रही, किसी मुसलमान का किसी बिदअत में पड़ जाना वो एक गलती है, एक गुनाह है, एक खता है, एक चूक है, लेकिन उसे बिदअती नहीं कहा जाएगा कि ये शख्स बिदअती है। लेकिन एक आदमी ऐसा हो जो उस चीज को महज एक गलती नहीं बल्कि उसकी फिक्र ऐसी हो, उसकी सोच ही ऐसी हो, उसका रास्ता ही वैसा बन गया हो और उसे वो दीन समझता हो, तो ऐसी सूरत में उसे बिदअती कहा जाए। तो किसी इक्का दुक्का बिदअत में पड़ जाने वाले को बिदअती नहीं कहा जाएगा। ऐसे मिसाल के तौर पर अगर आप इस सिलसिले में थोड़ी सी तफसील में जाएं तो अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की बात चल रही है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह बिदअत और कुफ्र की हकीकत बयान करते हुए, बिदअत क्या है, उसकी हकीकत क्या है, कुफ्र क्या है, उसकी हकीकत क्या है, इसको वाज़ेह करते हुए फरमाते हैं, कहते हैं अरबी में, लैसा कुल्लु मन वक़अ फिल बिदअति वक़अतिल बिदअतु अलैहि व लैसा कुल्लु मन वक़अ फिल कुफ्रि वक़अल कुफ्रु अलैहि। कहते हैं ऐसा नहीं है कि हर वो शख्स जो बिदअत में पड़ जाए बिदअत उस पर पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि जो शख्स किसी बिदअत में पड़ जाए बिदअत उस पर पड़ जाए, यानी क्या मतलब, उसे बिदअती करार दिया जाए, ऐसा नहीं है। ऐसे ही कहते हैं वलैसा कुल्लु मन वक़अ फिल कुफ्रि, ऐसे ही हर वो शख्स जो किसी कुफ्रिया काम में पड़ जाए, ऐसा इसका माना ये नहीं है कि वो पूरे तौर पर काफिर हो जाए। उसे कहा जाएगा इस शख्स ने एक काम किया है जो काम कुफ्रिया है, पूरे दीन का मुनकिर नहीं हो गया, पूरी शरीयत का मुनकिर नहीं हो गया, पूरी शरीयत का इनकार करने वाला नहीं बन गया। हाँ, उससे गलती हुई है, एक काम ऐसा कर बैठा है जो काम कुफ्रिया है। ये इसका माना है जो अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह यहां पर कह रहे हैं। अच्छा, तो अब इस सिलसिले में आइए थोड़ी सी वजाहत आपके सामने करना है। इस मसले को पढ़ने का फायदा क्या है? इस मसले को पढ़ने का फायदा यह है कि आज एक बहुत बड़ा फितना अकीदे के बाब में, दीन के बाब में, किसी को बिदती करार देने के बाब में, किसी को काफिर करार देने के बाब में एक अजीबोगरीब फितना चल रहा है। वो ये है कि किसी आदमी से अगर कोई बिदअत का काम हो गया तो लोग ये नहीं कहते हैं कि एक आदमी से गलती हुई है और एक बिदअत का काम कर बैठा है। एक बिदअत में पड़ गया है, उसे समझा के, बुझा के, नसीहत करके उसे उस बिदअत से निकाल लिया जाए, बल्कि उस एक बिदअत में पड़ जाने की वजह से उसे क्या लोग कहते हैं, कहते हैं आदमी बिदअती हो गया, आदमी बिदअती हो गया। या एक आदमी से कोई गलती हो जाए, ऐसी गलती जो कुफरिया गलती हो, यानी वो काम ऐसा कर बैठा, ऐसी बात बोल के गया जो बात कुफरिया है, जो काम कुफरिया है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि आदमी काफिर हो गया, बल्कि कहा जाएगा एक आदमी मोमिन है, मुसलमान है, लेकिन एक काम ऐसा कह गया है, एक बात ऐसी बोल गया है जिसकी वजह से कुफ्र लाजिम आता है। जल्द से जल्द उसे समझा करके, नसीहत करके उसे बाहर निकालो। ऐसा नहीं है कि पूरी शरीयत का मुनकिर हो गया या पूरे शरीयत का कुफ्र करने वाला बन गया। इसी बात को समझा रहे हैं। तो हकीकत क्या है कुफ्र की, हकीकत क्या है बिदअत की। अब कहते हैं कि इसको थोड़ा सा और तफसील से समझें और मैं खुलासा आपके सामने उसका पेश करता हूं। दो मसले हमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज पढ़ने हैं, गर्चे की वक्त मुख्तसर है, लेकिन दो मसले खुलासे के तौर पर पढ़ लेंगे, हम इसकी कोशिश करनी है। देखिए, एक शख्स, देखिए सहाबे किराम के दौर तक तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, आपके सहाबे किराम के अहद में बिदअत की कोई बात सिरे से नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबे किराम के बाद ताबईन का जो दौर था, ताबईन के दौर में जो ताबईन नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के वाकई सोहबत में रहे, उनसे इल्म हासिल करते रहे, उनके साथ जुड़े रहे, उनकी राह पर चलते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह वो ताबई रहे। लेकिन जो लोग सहाबा का रास्ता छोड़ दिया, जिन्होंने वो इन्हिराफात में पड़ गए,
उनके फिक्र में बिगाड़ आ गया, उनके अमल में बिगाड़ आ गया, उनके अकीदे में बिगाड़ आ गया। ऐसी बात है कि ताबईन ही का वो दौर है जिस दौर के अंदर खारजी फिरका पैदा हुआ। हम और अब जानते हैं कि हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो खिलाफ बगावत करने वाले थे वो ताबईन के दौर के ही लोग थे। लेकिन जाहिर है कि वो अगर उसी राह पर चलते जो अल्लाह ताला की किताब और नबी की सुन्नत और सहाबे किराम की राह है, तो वो इस तरह से बिदअत और इनहिराफ में यानी खुरूज की, बगावत की बिदअत में नहीं पड़ते। तो अब शेख कहते हैं कि ऐसा कभी हो सकता है कि ताबईन के दौर का कोई आदमी कोई ऐसी बात कह दे, कोई ऐसा नया तरीका निकाल दे, या ऐसे ही ताबईन के बाद के दौर यानी तबे ताबईन के दौर में या उनके बाद के दौर में, आप सिलसिलावार चले आइए आज तक के दौर में या आजकल के बाद के दौर में, क़यामत से पहले पहले तक जो भी दौर हो, यानी सहाबे किराम के दौर के बाद अगर कोई आदमी किसी आदमी से कोई ऐसी चीज हो जाए जो दीन के अंदर नई हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शरीयत की इस्तिलाह में बिदअत कहते हैं, मुहदस कहते हैं। कुल्लु बिदअतिन, अल्लाह क्या फरमाया था, कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला। तो मुहदसा यानी दीन के अंदर निकाली हुई नई चीज, कोई ऐसी चीज जो दीन में नई निकाल ली गई हो। तो कहते हैं कि ताबई या ताबई के बाद तबे ताबई या उसके बाद के दौर में, आज तक के दौर में कोई शख्स कोई ऐसी नई चीज निकाले दीन के अंदर जो नई चीज हो, इसका इस्लाम के अंदर कोई अता पता ना हो, इस्लाम में कोई असल ना हो, इस्लाम में उसकी कोई असास ना हो, बुनियाद ना हो, ऐसी कोई चीज निकाल दे, नई चीज पैदा कर दे इस्लाम के अंदर। तो अब कहते हैं कि उस काम को, जो काम उसने नया निकाला है, तो मिसालें आएंगी, अभी मिसालें आगे आ रही हैं। तो कोई नई चीज दीन के अंदर निकाल दिया, तो ऐसी सूरत में उस नई निकाली हुई चीज को क्या कहा जाएगा, बिदअत है। वो चीज बिदअत है जो नई चीज निकाली गई। लेकिन जिस आदमी ने वो चीज निकाली है उसे पूरे तौर पर सुन्नत से बाहर करके बिदअती कह दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। उस काम को बिदअत कहा जाएगा, लेकिन वो काम जिससे हो गया है, वो मोमिन है, मुसलमान है, लेकिन एक काम ऐसा कर गया है जो नई चीज है, नया काम है दीन के अंदर, उसकी कोई असास और बुनियाद नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये काम जो निकाला है, ये चीज जो निकाली है, नहीं, ये तो बिदअत है। लेकिन उस निकालने वाले को पूरे तौर पर सुन्नत से बाहर कर दें, ये सुन्नत वालों से खारिज हो चुका है और पूरे तौर पर बिदअती हो चुका है, इस तरह का हुक्म उसके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। अब आइए मिसाल के तौर पर, बतौर मिसाल कहा क्या जाएगा, फिर उसे बिदअती तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा इससे चूक हो गई है, इससे लफ्जिश हो गई है, इससे खता हो गई है, इसने किसी चीज को जैसे समझना चाहिए था वैसे समझने के बजाय उसने तावील कर लिया है, यानी उसको उसकी असल शक्ल के बजाय किसी और शक्ल में समझ लिया है, यानी उसने समझा कुछ और है और हकीकत में वो कुछ और है। या मिसाल के तौर पर अगर बाज इस किस्म के लोगों से कोई नई चीज निकलती है जिनका ताल्लुक इल्म से है, यानी जिनका ताल्लुक उलमा से है, उलमा की फहरिस्त में वो आते हैं, उलमा कहलाने वाले लोग हैं, अगर ऐसे लोगों से अगर कोई नई चीज दीन के अंदर वजूद में आ जाती है, कोई नई चीज निकाल देते हैं वो, हालांकि उलमा की फहरिस्त में उनको शुमार किया जाता है, तो ऐसी सूरत में क्या कहा जाएगा, ऐसी सूरत में कहा जाएगा कि शायद हो सकता है कि इस साहिब इल्म के पास वो दलील ना आई हो, इस दलील में बतलाया गया है कि ये सुन्नत है, सुन्नत का इल्म उसके पास नहीं आ सका, इसलिए उसने एक नई चीज निकाल दी, है ना। या मिसाल के तौर पर आप आए की तफसीलात इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे कि बिदअतों के पैदा होने और निकलने और उसके परवान चढ़ने के बहुत सारे असबाब हैं। उन असबाब में से एक सबब ये भी है कि कोई हदीस होती है और वो हदीस झूठी होती है, मौजू होती है, ज़ईफ होती है, नाकाबिल एतबार होती है, लेकिन किसी आलिम के यहाँ वो हदीस सही समझी जाती है, यानी वो आलिम अपने इल्म के मुताबिक समझता है कि वो हदीस सही है, उस हदीस को सही समझता है और सही समझ करके उस पर अमल करता है। जब हदीस को सही समझ रहा है तो उसको सुन्नत समझ रहा है और सुन्नत समझ करके उस पर अमल कर रहा है, जबकि हकीकत में वो हदीस कैसी है, हदीस सही नहीं है, बल्कि ज़ईफ है, मौजू है, मनगढ़ंत है। तो ऐसी चीजें, ऐसी हदीसें जो ज़ईफ हैं, मौजू हैं, उनकी वजह से भी दीन इस्लाम में बिदअतें पैदा हुई हैं, बिदअतें फैली हैं, परवान चढ़ी हैं।
اس لیے اگر بعض علماء سے کبھی آپ سنیں، بعض علماء سے کبھی آپ سنیں کہ فلاں عالم ہے، بڑا عالم ہے، یا مثال کے طور پر اس کا درجہ اماموں کی فہرست میں آتا ہے، یا اس کا درجہ بڑے مصنفین میں سے ہے، شارحین میں سے ہے، یا مثال کے طور پر وہ مفسرین کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، اور آپ کو پتا چلے کہ اس شخص سے بھی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو بدعت کے دائرے میں آتی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ شخص صاحب علم ہے، صاحب فضل ہے، اس کا علم، اس کا مقام اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن یہاں جو اس نے ایک نئی چیز کو دین سمجھ لیا ہے، وہ فلاں حدیث کی بنیاد پر سمجھا ہے، اس حدیث کو اس نے صحیح سمجھا، اس لیے اس کو دین سمجھ لیا، حالانکہ وہ حدیث کیا ہے؟ ناقابل اعتبار ہے۔ تو اپنی علم کی وجہ سے حدیث جو ضعیف ہے اس کو صحیح سمجھا، اور صحیح سمجھ کر کے اس کو دین بنا لیا، جس کی وجہ سے دین اسلام کے اندر ایک ایسی چیز شامل ہو گئی، داخل ہو گئی، جس کا تعلق حقیقت میں دین اسلام سے نہیں ہے۔ اس کی مثالیں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو یہ خلاصہ ہے، یہ خلاصہ ہے، لیکن ایک جملہ، ایک لفظ خاص طور پر یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ جو بات، اس نقطے پر ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ نقطہ کیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی چیز جو دین اسلام کے اندر چیز نئی ہو اس کو بدعت کہا جائے گا، لیکن جس سے وہ چیز ہو رہی ہے اس کو بدعتی نہیں کہا جائے گا، اس کو پورے طور پر دین اسلام سنت سے نکال کر بدعتی کی فہرست میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے لیے ایک نقطہ یاد رہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں یہ معروف ہو، معلوم ہو، جانا پہچانا ہو، اس کی تقریروں سے، اس کی تحریروں سے، اس کی کتابوں سے، اس کی تصنیفات سے، اس کے لٹریچر سے یہ چیز جانی پہچانی ہو کہ اس شخص کا راستہ اتباع کا راستہ ہے، اس شخص کا راستہ سنت کا راستہ ہے، یہ اپنی پوری زندگی میں جو بھی لکھتا رہا ہے، جو بھی بولتا رہا ہے، جو بھی درس دیتا رہا ہے، جو بھی لیکچرز دیتا رہا ہے، جو بھی کتابیں لکھتا رہا ہے، اس کا منہج یعنی راستہ کیا ہے؟ سنت کا راستہ ہے، اس کا راستہ اتباع کا راستہ ہے۔ یہ کبھی بھی سنت سے ہٹ کر کے اپنی عقل پر نہیں چلتا، سنت سے ہٹ کر کے فلاں کی بات کو فالو نہیں کرتا۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ چیز معروف ہو، معلوم ہو، جانی پہچانی ہو کہ اس کا راستہ سنت کا راستہ ہے، اس کا راستہ اتباع کا راستہ ہے، یہ قرآن تلاش کرتے ہیں، یہ سنت تلاش کرنے والے ہیں، یہ صحابہ کرام کا راستہ تلاش کرنے والے ہیں، ان کا راستہ، ان کا منہج یہ ہے۔ ایسے لوگوں سے اگر کسی مسئلے میں ایسی چیز پیدا ہو جائے جس کے اندر جس کی کوئی بنیاد دین اسلام کے اندر نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ عمل تو بدعت ہے لیکن یہ شخص بدعتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کا راستہ سنت کا راستہ ہے، اس کا منہج اتباع سنت ہے، اس کا منہج صحابہ کرام کا منہج ہے، یعنی اس کا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اس شخص سے فلاں مسئلے میں غلطی ہوئی ہے، اور ایک شخص ایک چیز کو جو سنت نہیں ہے، بدعت ہے، اس نے اسے بدعت کے بجائے سنت سمجھ لیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے نتیجے میں ایک بدعت کا عمل آ گیا ہے۔ تو یہ عمل تو بدعت ہے لیکن وہ آدمی بدعتی نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی سنت کے راستے پر چلنے والا ہے۔ اس سے لغزش ہو گئی، اس سے چوک ہو گئی، وہ پھسل گیا، وہ بہک گیا، اس لیے ایسا اس سے ہو گیا، ورنہ حقیقت میں اس کا راستہ بدعت کا راستہ نہیں ہے، اس کا راستہ حقیقت میں سنت کا اور اتباع کا راستہ ہے۔ تو ایک قاعدے کے طور پر، ایک پرنسپل کے طور پر اس بات کو سمجھ کے رکھنا ہے، یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں، یہ بات علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ صراحت کے ساتھ کہتے ہیں لمن عرف فیہ الاتباع والسنہ، یہ بات ان لوگوں کے سلسلے میں ہے جن کے بارے میں یہ معروف ہو، جانا پہچانا ہو، معلوم ہو کہ اس کا راستہ اتباع کا راستہ ہے، اس کا راستہ سنت کا راستہ ہے۔ اب اگر اتباع اور سنت کے راستے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ ان کا ٹریک ہی الگ ہے، ان کا ٹریک ہی الگ ہے، ان کا راستہ ہی الگ ہے، ان کا منہج ہی الگ ہے۔ مثال کے طور پر روافض کو لے لیجئے، شیعہ جن کو ہم کہتے ہیں، ان کا راستہ کیا ہے؟ ان کا راستہ یہ ہے کہ ہمارے امام معصوم سے جو بات آئے گی وہ حق مانی جائے گی، ہمارے امام معصوم کے علاوہ سے اگر کوئی بات آتی ہے تو ہم اس کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے۔ راستہ الگ ہے کہ نہیں الگ ہے؟ یہ خود فی نفسی غلط ہے،
कोई मासूम नहीं है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने मासूम बना दिया है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई मासूम नहीं है उम्मत के अंदर, सब बशर है, इंसान है, उनसे गलती का इम्कान है, उनसे चूक होने का इम्कान है। लेकिन इन लोगों ने, रवाफिद शिया ने राब्ता क्या बना दिया, एक कायदा, प्रिंसिपल क्या बना लिया, हमारे इमाम मासूम यानी आले बैते रसूल के जितने भी लोगों को वो जानते हैं, जिनके नाम वो बयान करते हैं, वो सब के सब इमाम मासूम है, उनसे गलती नहीं हो सकती। जो कुछ वो कहेंगे वो हक और सच। इनका रास्ता ही अलग है। असल दीन का रास्ता क्या है? चाहे वो आले बैते रसूल से ताल्लुक रखने वाले हों या आले बैते रसूल के अलावा से ताल्लुक रखने वाले हों, वो अल्लाह के नबी के सहाबा, अल्लाह के नबी के सहाबा के बाद ताबईन या उम्मत के बाद के लोग जो कुरान पर, सुन्नत पर, सहाबे किराम के रास्ते पर चलने वाले हों, उन्हीं का एतबार किया जाएगा। यह है रास्ता। ऐसे मिसाल के तौर पर किसी का ट्रैक ही अलग हो, इत्तिबा और सुन्नत का रास्ता ही ना हो। मिसाल के तौर पर वो तबका जो अपनी अक्ल को, अपनी दानिश्वरी को, अपनी लॉजिक को दीन की बुनियाद समझता है, दीन के तमाम मसाइल को अपनी अक्ल पर परखता है, अपनी अक्ल पर परखता है, चाहे उसका ताल्लुक अकीदे से हो, चाहे उसका ताल्लुक मनहज से हो, चाहे उसका ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला की जात से हो, अल्लाह की सिफात से हो, चाहे उसका ताल्लुक मोजज़ात से हो, चाहे उसका ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला के दीन के किसी भी गोशे से हो। वो किसी भी चीज को मानता नहीं है जब तक कि उसकी अक्ल में वो बात बैठती नहीं। उसके यहाँ दीन को, दीन की चीजों को मानने और उसको एक्सेप्ट करने का जो फार्मूला है वो क्या है? वो है उसकी अपनी अक्ल, उसकी अपनी लॉजिक, अपनी दानिश्वरी। जो उसकी अक्ल में फिट होगी वो मानेगा, वरना नहीं मानेगा। कितनी कुरान करीम की आयतों में कीड़े निकालने वाले मौजूद हैं, कितने सही बुखारी की हदीसों में कीड़े निकालने वाले मौजूद हैं, सही मुस्लिम की हदीसों में कीड़े निकालने वाले मौजूद हैं, कितनी दीगर सही हदीसें, मुस्तनद हदीसों को रद्द करने वाले मौजूद हैं, कितने लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का इनकार करने वाले मौजूद हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का इनकार करने वाले मौजूद हैं। ये किस बुनियाद पर? इसलिए कि वो आयतें, वो हदीसें, वो बातें उनकी अक्ल पर फिट नहीं होती, इसलिए वो उसको नहीं मानती। ऐसे लोगों का रास्ता अलग है कि नहीं अलग है? ऐसे लोगों का रास्ता ही अलग। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल ले लें ताकि बात वाज़ेह हो जाए, हालांकि शायद ये बात इससे पहले हुई है, बतौर इशारा। अलग रास्ते पर चलने वाले लोगों की एक और मिसाल है। वो मिसाल क्या है? वो मिसाल है सूफियत की मिसाल, तसव्वुफ की मिसाल। एक तबका उम्मत का ऐसा भी है जो सूफियत की राह पर चलता है, जिसके यहाँ सारा दीन ख्वाब से आता है, जिसके यहाँ सारा दीन मनामात से आता है, जिसके यहाँ दीन का सोर्स क्या है? इल्हाम है, जिसके यहाँ दीन का सोर्स कश्फ है, करामात है। ये रास्ता अलग है कि नहीं अलग है? अल्लाह तबारक व तआला की दीन की बुनियाद कुरान करीम, नबी की सुन्नत और हजरत सहाबे किराम की फहम और उनकी समझ। ये है असल दीन और उसका ट्रैक और उसका रास्ता। अब जो लोग इस रास्ते से हट गए हैं उनकी बात नहीं की जाएगी। अब एक सूफियत की राह पर चलने वाला आदमी आए, उसने कोई बिदअत बना रखी है, उसको दीन समझता है, तो हम नहीं कहेंगे कि इसका अमल तो बिदअत है लेकिन ये बिदअती नहीं है, बल्कि उसको भी बिदअती कहा जाएगा क्योंकि उसका रास्ता ही अलग, उसका रास्ता ही अलग। एक राफजी आए, एक दीन के अंदर बिदअत निकाले, मिसाल के तौर पर सहाबे किराम पर लानत करने की बिदअत, सहाबे किराम को गाली देने की बिदअत, अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन, जो उम्मत में सबसे ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे मकाम के हैं बितरतीब, अबू बकर, उमर, उस्मान, इन सब पर लानत मलामत करने वाले। अब ऐसे लोग आए और वो बिदअतें करें तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये काम तो इनका बिदअत है लेकिन ये लोग बिदअती नहीं है, बल्कि क्या कहा जाएगा? इनका ये अमल भी बिदअत का है और ये भी बिदअती है। क्यों? इसलिए कि इनका रास्ता ही इत्तिबा का नहीं है, इनका रास्ता ही सुन्नत का नहीं। ऐसी अकल परस्तों का मामला, ऐसी मामला मुल्हिदीन का, ऐसे ही मामला है सूफिया का, जिनके यहाँ सारा दीन, उसका सोर्स, जैसा कि हमने अर्ज किया, मनामात है, ख्वाब है, कश्फ है, करामात है, इल्हाम है, इस तरह की चीजें इनके यहाँ पाई जाती हैं। आपके यहाँ बुखारी शरीफ की हदीस है, वो नहीं मानेंगे, वो कहते हैं आपके यहाँ हदीस बुखारी में जरूर मौजूद है
लेकिन उसको नरेट करने वाले, उसको रिवायत करने वाले सब मर चुके। क्या एतबार है इस हदीस का? हम इस हदीस को डायरेक्टली अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते से जुड़ करके परखते हैं तो ये हदीस ना काबिल एतबार निकलती है और फिर उस हदीस को वो नहीं मानती। ये बतौर इशारा, बतौर मिसाल। तो अर्ज ये कर रहा था कि ये नुक्ता याद रहे, और इसीलिए आज भी जितने लोगों पर, जितने फिरकों पर रद्द किया जाता है, अहलुस सुन्नत वल जमात के उलमा अइम्मा रद्द करते हैं, याद रखें कि यही उसूल वहां पर भी चलेगा, यही उसूल वहां पर चलेगा। अब कुछ लोग मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने कोई बिदअत निकाल दी, अब उस बिदअत को बिदअत हम कह रहे हैं और उस आदमी के बारे में कहते हैं कि उसका रास्ता भी बिदअत का है, तो लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, उस आदमी ने बिदअत का काम किया है, लेकिन उस आदमी को आप बिदअत क्यों कहते हैं? उस आदमी को बिदअत इसलिए कहते हैं इसलिए कि उसका रास्ता सुन्नत का इत्तिबा का नहीं है, उसका रास्ता इत्तिबा का और सुन्नत का नहीं है, बल्कि उसका रास्ता कुछ और है, अकल परस्ती का रास्ता है, जिसको एतिजाल कहा जाता है, उसका रास्ता है, लॉजिक का, दानिश्वरी का रास्ता है, सूफियत का रास्ता है ना, मिसाल के तौर पर राफिजियत का रास्ता है। इस तरह से वो सुन्नत के रास्ते से हटे हुए, इसलिए उनको कहा जाता है कि ऐसे लोग अहले बिदअत में शामिल हैं, अहले सुन्नत में शामिल नहीं है। ये एक बतौर इशारा है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ मिसालें पेश करता हूं। मिसाल किस पर पेश कर रहे हैं? कौन सा नुक्ता है? नुक्ता वही है, अमली कोई बिदअत हो, किसी शख्स से कोई अमल की बिदअत हो गई हो, उसका रास्ता इत्तिबा का रास्ता है, उसका रास्ता सुन्नत का रास्ता है, वो फी नफ्सी ही सुन्नत से इत्तिबा से हटने वाला आदमी नहीं है, लेकिन उससे किसी मसले में बिदअत हो गई है। मिसाल के तौर पर आपको बाज उलमा से भी इस तरह की चीजें मिलेंगी कि वो दुआ के बाद हाथों को अपने चेहरों पर फेरते हैं, दुआ के बाद हाथों को अपने चेहरे पर फेरते हैं। अब दोनों हाथों को चेहरे पर फेरने का मसला क्या है? इस मसले का खुलासा है कि इस सिलसिले में रिवायतें कुछ आई हैं, लेकिन कोई भी रिवायत काबिल एतबार नहीं है। आपने दुआ की, दुआ करने के बाद हाथ चेहरे पर भी फेरना चाहिए, इसकी दलीलें सही सुन्नत से साबित नहीं है। अब मसला यह है, किसी के बारे में आपको पता चल जाए, किसी पुराने या नए, कदीम दौर में, जदीद दौर में किसी भी आलिम से, है ना, मिसाल के तौर पर आपको ये बात मालूम पड़े, या किसी भी शख्स से, किसी मुसलमान से बात मालूम पड़े कि वो इस चीज को सुन्नत समझता है, क्या कि दोनों हाथों को उठा करके दुआ करना है और दुआ करने के बाद हाथों को चेहरे पर फेरना है। अभी किसी दुआ के मसले पर बात नहीं हो रही आपके सामने, इसलिए कोई दुआ के मसले पर कोई मसला आप मुस्तंबत न करें। कोई बात नहीं हो रही नमाज के पहले, नमाज के बाद या नमाज के अलावा औकात में, है ना, कोई भी मसले पर अभी बात नहीं हो रही। बात सिर्फ ये हो रही है कि हाथों को उठाने के साथ दुआ आदमी ने कर लिया, अब दुआ के बाद क्या दोनों हाथों को चेहरे पर फेरना है या नहीं फेरना है? तो ये है मसला। इस मसले में जो रिवायतें आई हुई हैं वो रिवायतें चूंकि ज़ईफ हैं, लेकिन अब उन ज़ईफ रिवायतों को बाज़ उलमा ने सही समझा और सही समझ करके उसको बतौर सुन्नत पेश किया, हालांकि उसकी बुनियाद पर, उस ज़ईफ हदीस की बुनियाद पर एक बिदअत दीन इस्लाम के अंदर आ गई। कई उलमा ने इसको बताया है कि बिदअत है ये। कई उलमा ने, इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा कि दोनों हाथों को दुआ करने के बाद अपने चेहरे पर फेरना ये बिदअत है। बिदअत का मतलब दीन इस्लाम के अंदर नहीं है। कोई खड़ा हो, कोई कहे हदीसों के अंदर आया हुआ है, तो हदीसों के अंदर आया हुआ, लेकिन वो हदीसें काबिल एतबार, हदीसें वो काबिल एतबार होंगी तो सुन्नत साबित होगी, वरना दीन इस्लाम में एक ऐसी चीज वजूद में आ जाएगी जो फी नफ्सी ही क्या है, फी नफ्सी सुन्नत नहीं है। तो एक मिसाल है। अब अगर ये चीज मिलती है किसी के बारे में कि वो हाथों को चेहरे पर फेरना सुन्नत समझता है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ऐसा शख्स बिदअती नहीं है। एक मसले में उससे गलती हुई है कि उस ज़ईफ हदीस को सही समझ करके उसने इस चीज को सुन्नत कहा, लेकिन उसका रास्ता इत्तिबा का रास्ता है, उसका रास्ता सुन्नत का रास्ता है, इसलिए वो शख्स बिदअती नहीं है। वो शख्स बिदअती नहीं, मसला बिदअत का है लेकिन वो शख्स बिदअती नहीं है। ऐसी मिसाल के तौर पर और भी बातें, यानी जो मिसाल बिदअत, अमली बिदअत में जो मिसालें हम ले सकते हैं, उनमें से मिसाल के तौर पर आप देखिए 15 शाबान की शब में
जो शब बेदारी करने, जागने, जिसको शब बारात का नाम दिया जाता है, हमारे मुसलमानों के यहाँ बहुत कुछ इस सिलसिले में चल रहा है। तो अब जो आवाम कर रही है, अभी इस पर बहस नहीं करनी है, बहस इस पर करनी है कि बाज उलमा के यहाँ आपको किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा कि उन्होंने इस चीज को सुन्नत समझा है कि 15 शाबान की शब में जागना चाहिए, शब बेदारी करनी चाहिए, लाइटिंग करनी चाहिए, नवाफिल पढ़ना चाहिए, कब्रों में जाना, कब्रिस्तानों में जाना चाहिए वगैरह। बाज उलमा की किताबों में आपको मिलेगा। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई ठीक है, हम तो किसी शख्स के पीछे नहीं चलते, शख्सियत परस्ती नहीं है दीन इस्लाम के अंदर। हाँ, इस मसले में जिस आलिम ने अपनी किताब में लिखा है कि शब बारात के नाम से कोई रात है 15 शाबान की और उसमें जागना चाहिए, इबादत करना चाहिए, ये सही रिवायतों में, मौजू रिवायतों में, मनगढ़ंत रिवायतों में ये बात आई हुई है और उस बुनियाद पर उन रिवायतों को सही समझ करके फलां आलिम ने अपनी किताब में इसको लिखा है। हालांकि ये सुन्नत नहीं है बल्कि बिदअत है। तो अमल तो बिदअत है, लेकिन इस चीज को अपनी किताब में जिसने लिखा है उसको हम बिदअती नहीं कहेंगे, उसको सुन्नत से बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसका रास्ता सुन्नत का रास्ता है, उसका रास्ता इत्तिबा का रास्ता है, उसका रास्ता सहाबा का रास्ता है। इसलिए उसको हम दायरे इस्लाम से, दायरे सुन्नत से निकाल करके दायरे बिदअत में दाखिल नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसे ही मिसाल के तौर पर और भी कुछ बातें, कुछ मिसालें आपके सामने पेश की जा सकती हैं। ऐसे ही मिसाल के तौर पर एक मिसाल और आप ले लें, जो मतलब यानी अमली मिसाल है, हमारे और आपके बीच की मिसाल है। एक मिसाल है फज्र की नमाज में कुनूत पढ़ने का मसला। फज्र की नमाज में कुनूत पढ़ने का मसला है, बहुत ज्यादा आम है, बहुत ज्यादा आम है। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में फज्र की नमाज में कुनूत पढ़ने को मसनून समझा है। क्यों समझा है? इसलिए कि उनके सामने कुछ रिवायतें हैं, हदीसें हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन बस मसला यह है कि वो रिवायतें सही सनद के साथ वो रिवायतें साबित नहीं है। मिसाल के तौर पर एक रिवायत है हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, और वो रिवायत हजरत इमाम अबू जाफर राजी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत मरवी है। और अबू जाफर राजी नाम का जो रावी है वो अहलुल हदीस यानी मुहद्दिसीन के यहाँ ज़ईफ है, और उनके यहाँ उस रावी के यहाँ बहुत सारी बातें मुनकर हैं, नाकाबिल एतबार है जो उसने बयान किया है। अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उस हदीस को सामने रखा और उस हदीस के मुताबिक उन्होंने कहा कि फज्र की नमाज में कुनूत पढ़ा जाएगा, इसलिए कि उन्होंने इस रिवायत को सही समझा। उनके सामने ये हकीकत उस वक्त नहीं आई कि ये रिवायत जो है, इस रिवायत के अंदर अबू जाफर राजी नाम का रावी है जो अहलुल हदीस यानी मुहद्दिसीन के यहाँ गैर मोतबर है, ज़ईफ है, नाकाबिल एतबार है। अब उन्होंने इस रिवायत को सही समझा, सही समझ करके उस पर अमल करना शुरू कर दिया। अब हम फिलहाल उसको बिदअत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई उसको बिदअत कहता है तो उसी अमल को बिदअत कहे। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जबान न खोले कि वो बिदअती है। क्यों? इसलिए कि इमाम शाफी तो सुन्नत के इमाम हैं। इमाम शाफी कौन है? सुन्नत के अइम्मा में से। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया था? खैर, इमाम शाफी की मनाकिब और उनकी सिफात और उनके कह लीजिए उनकी जिंदगी, उनकी सवानह अगर बयान करना हो तो वो मुख्तसर वक्त में नहीं बयान किया जा सकता, उसके लिए तो कई घंटे दरकार है, हफ्ते दरकार हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि जिस शख्स को रास्ता चलते हुए कोई कागज का टुकड़ा मिल जाए और उस पर कोई हदीस लिखी हुई हो तो तुम उसे मेरी तरफ से बयान कर दो कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को बयान करते हैं। सुन्नत का इतना जज्बा कि जहां हदीस मिली वही मेरा दीन है, जहां सुन्नत मिली वही मेरा दीन है, जहां सुन्नत मिली वही मेरा मजहब है, वही मेरा मसलक है। इस तरह से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मसला था। और इमाम शाफी कहा करते थे, मुझे उस आदमी के लिए हलाल नहीं है जिसके सामने सुन्नत खुल करके आ जाए। क्या फरमाया था? ला यहिल्लु लि अहदिन इस्तबानत लहु सुन्नतु रसूलिल्लाह अन यदअहा लिक़ौलि अहदिन काइनम मन कान। कहा करते थे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कि जिस शख्स के सामने सुन्नत वाज़े हो जाए, सुन्नत वाज़े हो जाने के बाद किसी आदमी के लिए जायज नहीं है, हलाल नहीं है कि उस सुन्नत को छोड़ दे किसी की बात की वजह से, किसी के कहने की वजह से, किसी के कौल की वजह से। हलाल नहीं उसके लिए सुन्नत को छोड़ना, काइनम मन कान, चाहे कहने वाला कोई भी हो, किसी की बात को भी सामने रख करके
सुन्नत को छोड़ना जायज नहीं। जब सुन्नत वाज़ेह हो जाए तो बस सुन्नत को गले लगाना चाहिए। इमाम शाफी, खैर इस तरह की बहुत सारी बातें उनकी सीरत के अंदर मौजूद हैं, बहुत ही तफसील के साथ अगर हम इमाम शाफी की सीरत को पढ़ेंगे तो हमें वो सारी बातें मालूम होंगी। और यही मामला मेरे भाइयों दीगर अइम्मा का भी है, इसलिए हमें उसे भी पढ़ने और जानने की जरूरत है। इससे ये पैगाम खुल करके आ जाएगा कि क्या अइम्मे अरबा रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन ने क्या वाकई सुन्नत को छोड़ा है, या कभी वाकई उन्होंने अपनी तकलीद करने का हुक्म दिया है, या सुन्नत के खिलाफ अपनी बात को फॉलो करने की राह दिखाई है। ये मसला भी खुल करके आ जाएगा। वाकई अइम्मे अरबा रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन की सीरत को भी और उनकी जिंदगी को भी तफसील से पढ़ने और जानने की जरूरत है, जिसके लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई और मौका है। ऐसी मिसाल के तौर पर एक मिसाल और ले लें। बाज़ उलमा के यहाँ, बाज़ अइम्मा की किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा, मिसाल के तौर पर कि ईना एक कारोबार है, ईना एक सूदी लेन देन है। इमाम हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर रिवायत में वो बात आई हुई है। आपने फरमाया था इदा तबायातुम बिल ईना व अखज़तुम अज़नाबल बकर व रज़ीतुम बिज़्ज़रा व तरकतुमुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्लन ला यंज़िउहु अन्कुम हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सही हदीस के अंदर आपने फरमाया था कि जब तुम लोग ईने का कारोबार करोगे, ईना यानी सूद की एक शक्ल है, उस सूदी कारोबार में अगर तुम पड़ जाओगे, व रज़ीतुम बिज़्ज़रा और खेती बाड़ी में मस्तो मगन हो जाओगे, और अखज़तुम अज़नाबल बकर और गायों की दुमें पकड़ करके रहोगे, यानी खेती और हल चलाने में लगे रहोगे, व तरकतुमुल जिहाद और अल्लाह ताला की राह में सच्चा जिहाद, अल्लाह की तौहीद की सरबलंदी के लिए जो जिहाद होता है, ये आतंक और दंगे और फसाद की बात नहीं चल रही है। अगर तुम वो असल जिहाद छोड़ दोगे तो सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्लन, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर कर देगा, मुसल्लत कर देगा। और उस वक्त तक ये जिल्लत तुमसे अल्लाह ताला नहीं उठाएगा जब तक कि तुम फिर पलट करके अल्लाह ताला के सच्चे दीन की तरफ ना आ जाओ। तो आपने शुरू में क्या फरमाया, इदा तबायअतुम बिल ईना, जब तुम लोग ईने का कारोबार करने लगोगे, यानी माल की हवस और हिर्स में, लालच में हलाल हराम की तमीज छोड़ दोगे, सूदी लेन देन में भी तुम आगे बढ़ जाओगे और वो भी करना शुरू कर दोगे, तो ईना हराम है। ईना क्या है? हराम है, सूदी लेन देन है। लेकिन आपको बाज़ उलमा की किताबों में मिलेगा कि उन्होंने ईने के कारोबार को जायज समझा है। तो अब ये बिदअत हुआ कि नहीं बिदअत हुआ? इस्लाम के अंदर है नहीं और उसको जायज समझा जा रहा है। तो क्यों ऐसा जायज समझा गया? उलमा ने क्यों जायज समझा? 5 उलमा की किताबों में क्यों मिला? इसलिए कि ये रिवायत जिसके अंदर ये बात आई हुई है, ये सही रिवायत उनके सामने नहीं आई, सही रिवायत उनके सामने नहीं आ सकी, हदीस नहीं पहुंची। अगर वो हदीस पहुंचती इन इमामों के सामने या किसी इमाम के सामने, तो नामुमकिन है कि सुन्नत का इमाम, इत्तिबा का इमाम कभी सुन्नत रसूल या हदीस रसूल को छोड़ दे, ये मुमकिन नहीं है। तो ये चीज अगर हमें कहीं मिलती है तो क्यों मिलती है? इसलिए मिलती है कि ये सही रिवायत उनके सामने नहीं आई, वरना उन्हें पता चल जाता कि ईना नाजायज है, ईना हराम है। लेकिन चूंकि हदीस नहीं मिली तो उन्होंने इस चीज को जायज समझ लिया। तो हम क्या कहेंगे? ईने का कारोबार ये तो बिदअत है, लेकिन जिस किसी इमाम ने, आलिम ने अपनी किताब में अगर लिख दिया है कि ईने का कारोबार जायज है, तो हम उसको बिदअती नहीं कहेंगे, इसलिए कि वो इमाम सुन्नत का इमाम है, वो इत्तिबा का इमाम है। हाँ, किसी का रास्ता ही अगर बिदअत का है तो फिर बात अलग है, जैसा कि बात इससे पहले गुजर चुकी है। ये मिसाल है। ऐसी 5 लोगों के बारे में आपको ये मिलेगा कि जो ऐसे मसाइल हैं, बाद ऐसे मसाइल जो मसाइल शर्म से मुताल्लिक हैं, हया से मुताल्लिक हैं। मिसाल के तौर पर पिछली शर्मगाह में सोहबत करने का मसला है, मुत्तफ़क़ा तौर पर हराम है, मुत्तफ़क़ा तौर पर हराम है, खिलाफ फितरत है। लेकिन आपको ऐसा कौल मिल जाएगा, किसी आलिम की किताब में ऐसा कौल मिल जाएगा कि उसको जायज समझा है, जायज समझा है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वो इमाम अगर सुन्नत का इमाम है, इत्तिबा का इमाम है, तो हम कहेंगे कि ये अमल तो गलत है, ये अमल तो बिदअत है, लेकिन वो इमाम बिदअती नहीं है, क्योंकि बस मसला इतना सा है कि जिस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को हराम करार दिया है, वो हदीस उस इमाम के सामने नहीं आई, नहीं पहुंची। इस बुनियाद पर ये मसला पेश आ गया। तो हम एक मसले को इस तरह से समझ लें कि किसी बिदअत के काम में पड़ जाने वाले को
ہم بدعتی نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ سنت کا اتباع کا عالم اور امام ہو، آدمی ہو۔ ہاں اس عمل کو بدعت کہیں گے کیونکہ اسلام کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، سنت میں کوئی اس کی اصل نہیں ہے، تو اس عمل کو بدعت کہیں گے، لیکن اس امام کو، اس عالم کو، اس مسلمان کو بدعتی نہیں کہیں گے جس سے وہ بدعت ہو گئی ہے، جب تک کہ وہ امام، وہ عالم یا وہ مسلمان سنت کے راستے پر، اتباع کے راستے پر چلنے والا ہو۔ لیکن اگر کوئی مسلمان یا کوئی عالم ہو یا کوئی بڑا چھوٹا ہو اور وہ سنت کے راستے پر چلنے کے بجائے بدعت ہی کے کسی راستے پر چلتا ہو، عقل پرستی کی طرف چلتا ہو، رافضیت کی راہ پر چلتا ہو، اعتدال کی راہ پر چلتا ہو، یا مثال کے طور پر صوفیت کی راہ پر چلتا ہو، کشف و کرامات اور منامات کی راہ پر چلتا ہو، الہاد کی راہ پر چلتا ہو، سنت اور حدیثوں کو پرکھنے کے جو محدثانہ اصول ہیں ان اصولوں کو رد کر دینے کی راہ پر چلتا ہو، تو ایسے شخص کی طرف سے کوئی بدعت آئے گی تو وہ عمل بھی بدعت کہلائے گا اور وہ شخص بھی بدعتی کہلائے گا، کیونکہ اس کا راستہ ہی سنت کا نہیں ہے۔ یہ بالکل اختصار کے ساتھ ایک مسئلہ تھا جس کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی۔ ایک دوسرا مسئلہ بھی میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے پیش کروں، وہ مسئلہ تھا بدعت حسنہ کا، کہ کیا کوئی دین اسلام کے اندر بدعت ایسی بھی ہے جس کو اچھی بدعت کہا جائے، اور اچھی بدعت کا لفظ جو بعض علماء کے یہاں پایا گیا ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ یہ مسئلہ رہ گیا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں اس مسئلے پر گفتگو ہوگی، مثالوں سے، حوالوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلف امت کے جو دعوت کے اصول ہیں ان اصولوں میں سے بدعت کا جو مسئلہ ہے، اس سے متعلقہ یہ جو باریکیاں ہیں یا اس کی جو جزوی مسائل ہیں، ان مسائل کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سنت کی اصل راہ پر پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ قائم رہیں، اور کسی بھی طرح سے عمل کی بدعت یا عقیدے کی بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور کسی بھی طرح سے عمل اور عقیدے کی بدعت میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔